Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Rabia here. And I welcome you in the series of all subjects lessons based on single national curriculum 2021 to 2022. English Class 5, Lesson 5, Amazing Planet. Poem, I Am the Earth. Exercise Part A to D. So let's begin today's lesson. Part A, Oral Communication. In oral communication, we will learn sounds. In sounds, today's topic is consonant clusters. What are consonant clusters? A consonant cluster is a group of 2 or 3 letters in a word. Each consonant keeps its own sound in the word. Consonant cluster क्या है? Words का group है, combination of words make a sound. ठीक है, अपनी ही word में एक sound बनाते हैं, उनको consonant clusters कहते हैं. They can become in the start of a word or in the final position of the word. Word के start में भी आते हैं, middle में भी आ सकते हैं और final position में भी आ सकते हैं. ये sounds कहीं पे भी word में आ सकती हैं और इन sounds से बहुत सारे words, ये sounds बहुत सारे words में इस्तेमाल होती हैं. Let's see consonant clusters in initial position. के शुरू में, word के शुरू में जो आने वाले consonant clusters हैं वो क्या हैं? पहला है STR, straw, strong, spring. Next one is SPR, spelling सीन है, साउंड बन रही है, ठीक है, spring, spread, spray. Next one is THR, throw, three, thread. Now consonant clusters in final position कि वर्ड के लास्ट में आने वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कौन से हैं, उनकी एग्जांपल्स देखते हैं. NTS, एजेंट्स, अकाउंट, पेंट. RST, रिस्ट, फर्स्ट, वर्स्ट, burst. FTS, in final position, gifts, drafts, crafts. Activity related to consonant cluster. Sort the words that begin and end with 3 consonant clusters. जो 3 consonant clusters से जो words इनमें से start हो रहे हैं और जो end पे जिन पे consonant cluster आ रहा है उनको अलग करना है, ठीक है. Strange, fonts, lifts, thirst. Initial consonant cluster is strange, okay, and final consonant clusters are fonts, thirst, lifts. Learning to speak. Read and practice the given dialogue. Raza, Assalamu alaikum Tokir, how are you? Tokir, Walaikum assalam, I am fine, thank you. What about you? Raza, I am fine too. You look so happy today. Are you going somewhere in the spring holidays? Raza, मैं भी ठीक हूँ, तुम आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो. क्या तुम इस बार इस बहार की छुट्टियों में कहीं जा रहे हो? तोकीर, Yes, I am going to visit my grandparents with my family. तोकीर ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं अपने ख़ानदान के साथ अपने दादा दादी से मिलने जा रहा हूँ. रज़ा, That's great. अब ये That's great क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ प्लेयर, ठीक है ना, खुशी के इजहार के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ प्लेयर कहलाते हैं. दिस इज़ दैट्स ग्रेट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ प्लेयर. ये तो बहुत अच्छी बात है. तोकीर, कुड आई बोरो योर कैमरा फॉर दिस ट्रिप?
क्या मैं तुम्हारा इस ट्रिप के लिए कैमरा उधार ले सकता हूँ? रज़ा, यस ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल ले सकते हो। तोकीर, थैंक यू रज़ा, आई विल कम टू योर होम टुनाइट। मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा। रज़ा, यू आर वेलकम, सी यू टुनाइट। तुम्हें खुश आमदीद है, आज रात तुमसे मिलेंगे। So this is a dialogue you have to practice in your class, okay? Next question is, use these functions to request your friend to bring you a novel from the library. She should also respond using the learned functions. ठीक है, functions जो अभी पीछे भी आपने डायलॉग में functions का यूज़ देखा, यही functions इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी से नावल लाने के लिए अपने दोस्त से दरख्वास्त करें और जो दोस्त है आपका वो भी इन्हीं फंक्शंस को इस्तेमाल करे जो वो सीख चुका है, उन्हीं में उसका आंसर करे। ठीक है, तो इस पे डायलॉग है, आप लिसन केयरफुली। अस्सलामु अलैकुम उमर, हाउ आर यू? उमर, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? अली, आई एम फाइन टू, आर यू गोइंग टू लाइब्रेरी? Umar, yes, I have need of some books. Ali, can you bring a novel for me? Umar, yes, of course. Which novel do you want? Ali, I want to read Number the Stars. Umar, okay, I will. Ali, thank you, Umar. Umar, you are welcome. Let's start its part B, reading and critical thinking. क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। ओके, रीडिंग कंप्रीहेंशन, आंसर द क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स, कि अपने अल्फाज में ज़मीन के एहसासात बयान करें कि ज़मीन क्या महसूस करती है, क्या कर रही है महसूस। आंसर इज़ अर्थ इज़ फीलिंग बैड एंड फेडिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ज़मीन जो है आलूदगी की वजह से बुरा महसूस कर रही है और मुरझाया हुआ महसूस कर रही है, यानी कि अपने आप को ख़त्म होता हुआ महसूस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, राइट सम ऑफ देम। हमारी ज़मीन किन मसाइल का सामना कर रही है, इनमें से चंद एक लिखें। आंसर इज़, Our earth has faced the problem of land, water and air pollution. हमारी ज़मीन ने ज़मीनी, आबी और फ़ज़ाई आलूदगी का सामना किया है। Next question is, how can we keep our environment neat and clean? Discuss, कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं, बहस करें। Answer is, we can keep our environment neat and clean by planting trees, cleaning streams, avoid smoke and avoid plastic. हम दरख्त उगाकर नदियों को साफ रखकर, धुएं से बचकर और प्लास्टिक से बचकर अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। Next question is, read the given paragraph aloud and notice the use of punctuation marks. ठीक है, अब इस पैराग्राफ को हमने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और इसमें पंक्चुएशन मार्क्स जो यूज़ हो रहे हैं उनको नोटिस करना है। स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन मार्क का यूज़ जो है आप पहले भी सीख चुके हैं, जिसमें है फुल स्टॉप है, फिर कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर कैपिटलाइजेशन है। ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन में आती हैं और किसका कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये भी आप पिछले लेसन्स में सीख चुके हैं। अब हम इस पैराग्राफ को ध्यान से रीड करेंगे। We were learning about the environment in school, so our teacher took us on a tour of the city. We saw a power plant, a factory, and a shop. They were big buildings with lots of smoke coming out of their chimneys. It made the sky look dark. We saw a canal. The water was dark and full of rubbish. The soil around it was dirty.
There was a lot of pollution all around. Time to think. अब इस पैराग्राफ में आप पंक्चुएशन मार्क का यूज़ देखें कि जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, ठीक है। जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है उसके बाद फुल स्टॉप को यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर देखिए, वी सा अ पावर प्लांट, अ फैक्ट्री एंड बुक शॉप। जब एक ही सेंटेंस में थ्री से ज़्यादा, टू से ज़्यादा नाउन यूज़ किए गए हैं एक ही ग्रुप के, तो उनके दरमियान में कॉमा का यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर लास्ट में देखें टाइम टू थिंक कि अब ये सोचने का वक्त है, हमें इस पे सोचना चाहिए। इसके लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये सारा पंक्चुएशन मार्क का जो यूज़ है आप हमेशा प्रैक्टिस किया करें इसकी। जो आप लेसन पढ़ते हैं उसमें भी आप देखा करें कि कहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ हो रहा है। फिर पीछे जो आपने पैराग्राफ पढ़ा था रज़ा और तौकीर वाला, उसमें भी जो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो यूज़ हुआ था कहाँ पे, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेयर जब जो है एक्सप्रेस किया गया था, प्लेयर का एक्सप्रेशन दैट्स ग्रेट जहाँ पे यूज़ हुआ था वहाँ पे भी यूज़ किया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अफिक्स का। अफिक्स क्या होते हैं? एन अफिक्स इज एडेड टू द बेस वर्ड, ठीक है। एक वर्ड बेस मेन जो वर्ड होता है उसके साथ हम ऐड करते हैं टू चेंज इट्स मीनिंग, इसका मतलब जो है वो तब्दील करते हैं। अफिक्स क्या है? एक मेन वर्ड के साथ जब ये यूज़ होती है तो उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अफिक्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ठीक है। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आपने उर्दू में भी साबके और लाहके आप पढ़ रहे हैं। वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग। प्री का मतलब होता है पहले। जो प्रीफिक्स होगा ना, छोटा सा ही कोई वर्ड का हिस्सा होगा, वो वर्ड से पहले जब हम लगा देंगे तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। प्री का मतलब होता है पहले। बिगिनिंग पे ये आएगा वर्ड के तो वर्ड का मीनिंग चेंज होगा। और सफिक्सेस जो है ना वो वर्ड के लास्ट पे हम ऐड करते हैं, एंड पे हम ऐड करते हैं तो एक न्यू वर्ड हमारा बन जाता है, ठीक है। क्या है? अफिक्सेस हमने पढ़ा। अफिक्सेस क्या है? कोई भी ऐसा वर्ड और उसका पार्ट होता है जो मेन वर्ड के साथ हम ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। और अफिक्सेस कितने हैं? दो तरह के हैं, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, ओके। साबके और लाके। प्रीफिक्सेस साबके यानी कि वर्ड से पहले आने वाले, और सफिक्सेस लाके जो वर्ड के बाद में ऐड करके हम वर्ड का मीनिंग चेंज करते हैं। अब है रीड द गिवन अफिक्सेस विद योर एग्जाम्पल। प्रीफिक्सेस हम देख लेते हैं। डिस है, री है, अन है, इन, ये सारे क्या है? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मतलब कि हम वर्ड से पहले जब हम इनको लगाएंगे तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे डिस प्रीफिक्स हम डिस ले लेते हैं तो हमारे पास एक वर्ड है लाइक जिसका मतलब है पसंद करना, तो जब हम उससे पहले डिस लगा देंगे तो मतलब ये बन जाएगा डिसलाइक जिसका मतलब है नापसंद। फिर हमारे पास प्रीफिक्स है री, ठीक है। और हमारे पास अगर एक वर्ड है जो है कवर, ठीक है ना, कवर ढांपना, अगर हम रिकवर कर देंगे, री उससे पहले यूज़ कर देंगे तो ये वर्ड चेंज हो जाएगा, रिकवर बन जाएगा और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। फिर है हमारे पास अन, ठीक है। अन को हम किसी वर्ड के साथ यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है फ्रेंडली, ठीक है ना, फ्रेंडली दोस्ताना, तो उसके साथ अन कर लेंगे तो ये अनफ्रेंडली हो जाएगा, उसी का ऑपोजिट हो जाएगा। फिर है इन, करेक्ट के साथ हम करेक्ट का मतलब होता है दुरुस्त, ठीक है। अगर करेक्ट से पहले हम इन लगा देंगे तो इन करेक्ट हो जाएगा यानी कि गलत। देखिए मीनिंग में कितना फर्क आ रहा है। अब हम सफिक्सेस को देख लेते हैं। सफिक्सेस यानी कि वर्ड के बाद में ऐड होने वाले सफिक्सेस हैं लेस, नेस, अल, शिप, ठीक है। आप लेस की एग्जांपल देख लें। वर्ड है हमारे पास स्पॉट, इसका अपना एक मतलब है, ठीक है, डॉट, नुक्ता। अगर हम इसके बाद लगा देंगे लेस तो ये बन जाएगा स्पॉटलेस यानी बगैर नुक्ते के, बगैर निशान के। नस, हैप्पीनेस। अल, लॉजिक, लॉजिक है, आगे अल लगा देंगे तो लॉजिकल। शिप, फ्रेंड, हमारे पास एक वर्ड है, फ्रेंड के बाद शिप लगा देंगे तो ये एक नया वर्ड बन जाएगा फ्रेंडशिप।
अब सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है नेक्स्ट, मेक वर्ड्स विद द गिवन सफिक्सेस अफिक्सेस में दोनों आ जाएंगे, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। पहले हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस वर्ड्स क्या हैं, हमारे पास मिस है, ओवर है, प्री है, इम है। और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो वर्ड से पहले यूज़ होते हैं, पहले हम ऐड करते हैं, यानी कि इनके बाद हमने कोई ऐसा वर्ड लगाना है जिससे एक नया वर्ड बने। जैसे हमारे पास मिस और इसके आगे हम अगर टेक को ऐड करेंगे तो हमारा न्यू वर्ड मिस्टेक बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ ओवर, अगर हम ओवर के बाद लोड को ऐड कर देंगे तो हमारा न्यू वर्ड ओवरलोड बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्री, इफ़ वी विल ऐड सेंट आफ्टर प्री, so it will become a new word that is present or present. Next one is im, if we will add possible after im, so it will become a new word that is impossible. Now come on suffixes. Suffixes are wise, fullest, okay, यानी suffixes यानी कि हमने इनसे पहले कोई word ऐड लगाना है, तो वाइज के बाद हम अगर साइड लगा देंगे तो ये साइड वाइज हो जाएगा। फिर फुल से पहले हम रिस्पेक्ट लगा देंगे तो ये रिस्पेक्टफुल बन जाएगा। और ली से पहले हम स्लो ऐड करेंगे तो स्लोली हो जाएगा। एंड बिफोर इस्ट इफ़ वी विल यूज़ आर्ट, इफ़ वी विल add art word, so it will become artist, okay. Next question is, read the poem again and fill in the blanks. The earth is our home. You will write home here. Next one is, we are destroying the earth's skin and bone. You will write bone here. We are polluting dash of the earth. We are polluting air of the earth. The next one is, the earth needs love and care. You will write care here in this blank. Next is analytical reading. In analytical reading, the statement is, visit your school library, read some information about climate change, note down some information in your notebook. So let's see its answer. Climate change. Climate change describes a change in the average conditions such as temperature and rainfall in the region over a long period of time. Earth's climate has constantly been changing. Scientists have observed unusual changes recently. For example, Earth's average temperature has been increasing much more quickly than they would expect over the past 150 years. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि आबो हवा में तब्दीली औसत हालात में तब्दीली को बयान करती है। जैसा कि एक इलाके में एक लंबे अरसे के लिए दर्जा हरारत और बारिश का होना, ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल तब्दील हो रहा है। हाल ही में साइंसदानों ने गैर मामूली तब्दीलियों का मुशाहिदा किया है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का दर्जा हरारत इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जितना उन्होंने पिछले 150 सालों में तवक्को किया था। ओके, पार्ट बी इज़ फिनिश्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट सी ऑफ दिस लेसन, विच इज़ लैंग्वेज फोकस, vocabulary building. Read the given words with their meanings. Destroy, come to an end, ख़त्म होना। Regret, अफसुर्दगी महसूस करना, feel sad. Realize, गौर करना, जायज़ा लेना, notice. Mob, मायूस होना, despair. Now come on page 51 of your lesson. Synonyms and antonyms. Synonyms are words with similar meaning. ठीक है, synonyms उस word का meaning होगा. And antonyms are word with opposite meaning. Antonyms are those words which are having opposite meanings, मतलब कि मुत्तज़ाद, उसका उल्ट, उसकी ज़िद। सिनोनिम्स में क्या होगा, उसी वर्ड से मिलते जुलते अल्फाज होंगे, उसी का मतलब होगा,
और एंटोनिम्स में उसी वर्ड का उल्ट होगा, ऑपोजिट होगा, उसी की जिद होगी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास वर्ड्स गिवन है, उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स भी दिए गए हैं और एंटोनिम्स भी दिए गए हैं ताकि आप इनका डिफरेंस जान सकें। वर्ड्स आर सॉफ्ट, synonym is smooth and antonym is hard. Cheer, synonym is delight and antonym is sadness. Pretty, pretty means beautiful and its opposite is ugly. Stay, stay synonym is stop and opposite is leave. Joy, synonym is happiness and antonym is sorrow. Now next activity is read the given text read the given text, write synonym and antonym for the underlined words in your notebook. The world is happy because the spring season is coming. So happy's synonym is joyful and its antonym is sad. The grass becomes soft and green. The word is underlined word is soft and the synonym of soft is smooth and antonym is hard. Next sentence is the garden presents a beautiful sight. Beautiful. Beautiful's synonym is pretty and its antonym is ugly. Next sentence is the flowers are blooming everywhere in the spring. The underlined word is blooming and its meaning is blossom and its antonym is fade. Last sentence is the birds are enjoying the spring. Enjoying, celebrating and its antonym is dislike. Now learning to spell. Rearrange the jumbled letters to make word and learn their spellings. ओके, ये जंबल वर्ड्स हैं, आगे पीछे वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करके आपने वर्ड बनाना है। HCEER and the word is cheer. Next is INWOWD, तो इनको अरेंज करने से वर्ड बनेगा विंडो। नेक्स्ट जंबल वर्ड्स हैं हमारे पास VERYE, इसको अरेंज करने से हमारा वर्ड बनेगा एवरी। नेक्स्ट जंबल वर्ड्स आर IDWOR. If we will arrange them, so our word will become world. And the next last one jumble words are SCSENE. The word will become seen. Now let's start our grammar portion. In grammar portion, the topic is common and proper noun. Common noun are the names of any person, place or thing. किसी भी शख्स का चीज़ या जगह का नाम, ठीक है। कॉमन आम, इसमें आम भी कहते हैं इसको, इसमें नकरा भी कहते हैं। एंड द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और प्रॉपर नाउन इसम मार्फा, इसमें ख़ास जो है किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के नाम को कहते हैं। रीड दी फॉलोइंग कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन दी सेंटेंसेस। अब हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को सेंटेंसेस में पढ़ना है, इन पे गौर करना है। कॉमन नाउन्स की पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि बॉयज़ बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, नहीं पता किस बॉय की बात है। एंड प्रॉपर नाउन की एग्जांपल है अली इज़ डूइंग हिज होमवर्क। यहाँ अली इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज उस एक बॉय का नाम बता दिया गया है कि होमवर्क करने वाला कौन है, अली है, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये होमवर्क कर रहा है, हमें मालूम है। द चिल्ड्रन वेंट टू दी म्यूज़ियम। चिल्ड्रन, म्यूज़ियम, कॉमन नाउन की एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं म्यूज़ियम, हमें नहीं पता कौन से वाला है, बहुत सारे म्यूज़ियम है।
अब प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में देखें, द चिल्ड्रन वेंट टू दी लाहौर म्यूजियम। अब म्यूजियम का नाम दे दिया गया है तो ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट इज आई हैव 2 कैट्स, बहुत सारी कैट्स होती हैं, ठीक है, और ये कॉमन है, कैट्स कॉमन नाउन है। माई कैट्स नेम इज़ टॉफ़ी, अब नाम बता दिया गया है तो ये प्रॉपर नाउन है। These mountains are full of flowers, mountains flowers are common noun। देखिए नाउन्स हमने देखने हैं इसमें, ठीक है। अब माउंटेन्स हमें नहीं पता किस, बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर किसी माउंटेन का नाम होगा तो वो कॉमन होगा, है क्या है। नेक्स्ट हम प्रॉपर नाउन के कॉलम में देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। अब माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया गया है, ख़ास है, एक ही माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और नहीं है, तो फिर ये है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम कॉमन नाउन के कॉलम में देखते हैं, देयर आर मैनी फिश इन द लेक, बहुत सारी लेक्स होती हैं, किसी ख़ास लेक का नाम होगा तो वो प्रॉपर होगा, नहीं तो लेक जो है वो कॉमन नाउन है। अब नेक्स्ट देखिए, लेक सैफ अल मलूक गिव्स अ स्प्लेंडिड साइट। अब लेक का नाम है, एक ही लेक है सैफ अल मलूक, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। दे बॉट अ हाउस नियर अ रिवर, रिवर इज़ अ कॉमन नाउन एंड रिवर इंडस, या किसी भी रिवर का जब नाम आ जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, जैसे द रिवर इंडस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है, सर्कल दी कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हमारे पास जो सेंटेंसेस गिवन है हमने इनको पढ़ना है, इसमें कौन से प्रॉपर नाउन है, कौन से कॉमन नाउन है, फाइंड आउट करना है, और जो प्रॉपर नाउन है हमारे उनको हमने करना है अंडरलाइन, और जो कॉमन नाउन्स होंगे उनको हमने करना है सर्कल। आमना एंड सना आर playing with their dolls। आमना एंड सना आर प्रॉपर नाउन, ठीक है, स्पेसिफिक लड़कियों के नाम बता रहे हैं कि ये दोनों गर्ल्स के नेम हैं यहाँ पे, ठीक है। आर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, डॉल्स बहुत सारी हैं, डॉल्स यहाँ पे कॉमन नाउन है। हमजाज कैट इज़ वेरी नॉटी, यहाँ इस सेंटेंस में there are 2 nouns, Hamza and cat। Hamza is the proper noun, so we will underline it, and cat is a common noun, so we will circle it. Next sentence is, their school is going on a trip to Mazar-e-Qaid। There are 2 nouns, Mazar-e-Qaid and school। School is a common noun, बहुत सारे स्कूल हैं, किसी स्कूल का नाम तो नहीं दिया गया ना यहाँ पे। अब the Mazar-e-Qaid is proper noun। Next is Satpara Lake is a beautiful lake in Pakistan। There are 3 nouns, Pakistan, lake, Satpara Lake। Satpara Lake is a proper noun and Pakistan is a proper noun and lake is a common noun। Next is the Ravi River flows through Lahore। There are 2 nouns, Lahore and Ravi River, both are proper nouns। Now common gender nouns। Common gender refers to noun that can be male or female, such as teacher, worker, friend, cousin, neighbor, etc। कॉमन जेंडर कॉमन नाम से ही वाज़ेह है कि कॉमन फीमेल और मेल दोनों के लिए जो यूज़ हो, ठीक है ना। जैसे टीचर है तो टीचर मेल के लिए भी यूज़ होता है, फीमेल के लिए भी, वर्कर भी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। फिर है फ्रेंड भी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है, कज़न में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, नेबर में भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास सेंटेंसेस है जिनमें हमने कॉमन जेंडर को नोट करना है। द पेशेंट इज़ स्लीपिंग, अभी हमें नहीं पता पेशेंट मेल है या फीमेल है, लेकिन पेशेंट एक कॉमन नाम है। माई कज़न विल विजिट अस सून, वी डोंट नो कज़न इज़ अ मेल और फीमेल, सो इट्स कॉमन जेंडर। The baby is crying loudly। Baby is a common noun, we don't know it's female or male। A bird is chirping in a tree। bird भी देखिए परिंदा ही है, इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। These workers are hard working। वर्कर्स में अब नहीं हमें कंफर्म कि मेल है फीमेल है, दोनों इसमें आएंगे, ठीक है।
अब हमने कॉमन जेंडर्स को समझ लिया। इसी पे हमारी एक्टिविटी है राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। 5 हमने जेंडर नाउन्स लिखने हैं और उन पर जुमले भी बनाने हैं। ओके, कॉमन नाउन्स स्टूडेंट्स, these students are very intelligent. Baby, the baby is sleeping. Cobbler, the cobbler is mending my shoe. Birds, the birds are flying in the air. Next is parents. My parents are going to England. Doctor is also common gender. Next question is related to punctuation. Rewrite the given sentences by adding correct punctuation in your notebook. दोबारा जुमलों को लिखें जो उनके दुरुस्त रमूज़ व काफ हैं उनका इजाफा करके, ठीक है। Why was the world happy? Why का W would be capital and after happy you will put a question mark. Next is the birds are singing the song. D का T capital and singing the song के बाद songs के बाद full stop. Next sentence is her favorite flowers are roses, sunflowers and tulips. Her का H capital. After roses put a comma and after tulips full stop. Wow, what a beautiful flower it is. Wow's W would be capital. After wow put a comma. What a beautiful flower it is. इसके बाद जो है आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, या फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आप यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका इसी सेंटेंस का ये है कि वाव W would be capital और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट करें। What a beautiful flower it is, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज I like the spring season. I would be capital and after season put full stop and springs S would be capital. Okay, now I'm going to start its part D. This is the last part of this lesson. Learning to write. Read the given mind map and write a paragraph about climate change in your notebook. आपको ये माइंड मैप दिया गया है, ठीक है, इसके मुताबिक आपने क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। देखिए क्लाइमेट चेंज हमारा टॉपिक है, उसमें पोल्यूशन से रिलेटेड, डिफॉरेस्टेशन, फिर राइजिंग टेम्परेचर, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, इन पॉइंट्स पे हमने लिखकर एक पैराग्राफ जो है वो बनाना है। पैराग्राफ इस तरह से बनेगा, देयर आर मैनी थिंग्स विच आर चेंजिंग द क्लाइमेट, deforestation affected badly on climate. When trees are cut down, then the level of oxygen decreases and carbon dioxide increases in the air, which results in rise of temperature. Pollution is another factor which changes climate. As a blanket, pollution traps heat around the earth. Moreover, the polluted water also changes the climate and decreases the fresh water resources. All these things ultimately cause global warming. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें आबो हवा को तब्दील कर रही हैं। जंगलात का कटाव आबो हवा पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। जब दरख्तों को काटा जाता है तो हवा में ऑक्सीजन की सतह कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की सतह बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। आबो हवा में तब्दीली की एक दूसरी वजह आलूदगी है। एक कंबल की तरह आलूदगी हरारत को ज़मीन के गिर्द बंद कर देती है। मज़ीद बरआं आलूदा पानी भी आबो हवा को तब्दील करता है और ताज़ा पानी के ज़राए को कम कर देता है। बिलाखिर ये तमाम चीज़ें
ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं। इसी तरह की हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमने खुद करनी है। मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट सीजन एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट। ठीक है, माइंड मैप में जहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे आप लिखेंगे फेवरेट सीजन। ठीक है, ऊपर जहाँ पे पोल्यूशन लिखा हुआ है उसी तरह आप वहाँ पे लिखेंगे कोल्डनेस, स्नोफॉल। फिर राइट साइड पे जहाँ पे आपका बुक पे लिखा हुआ है डिफॉरेस्ट्रेशन, आप वहाँ पे लिखेंगे वार्म क्लॉथेस, और लास्ट वाले पे लिखेंगे एप्पल ऑरेंजेस। ओके, अब हम पैराग्राफ बनाते हैं इन्हीं पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को सामने रख के माइंड मैप के मुताबिक। विंटर इज़ माई फेवरेट सीजन। आई लाइक टू वियर वार्म क्लॉथेस लाइक जैकेट्स, स्वेटर्स एंड कोट्स ड्यूरिंग विंटर। The weather is very cold and I like snowfall also. This season offers a lot of fresh fruit like oranges, bananas and apples, etc. Moreover, I like to drink hot milk in this season. I love to cover myself with the quilt and read books when at home. ठीक है, ये विंटर सीजन पे है आपका पैराग्राफ। अब हमारे पास एक और पैराग्राफ राइटिंग है। क्या है? राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन योर नोटबुक। यू मे यूज द गिवन वर्ड बैंक। वर्ड बैंक हमारे पास गिवन है, इनको यूज करते हुए हमने, हमारे पास टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, और ये वर्ड्स यूज करते हुए हमने पैराग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। The environment plays an important role in life. It is an essential part of our life. A clean environment is very necessary to live a peaceful and healthy life. An environment is the natural surrounding which helps life to grow on this earth. But nowadays, our everyday actions are negatively impacting the environment, causing pollution and deforestation. We are disturbing our environment. Any type of disturbance in the nature's balance affect the environment totally, which ruins the human lives. इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि माहौल ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। यह हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। एक पुरसुकून और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एक साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है। एक माहौल कुदरती गिरदोपेश होता है जो इस ज़मीन पर ज़िंदगी को परवान चढ़ाने में मदद देता है। लेकिन आजकल हमारे हर रोज़ के काम आलूदगी और जंगलात के कटाव की वजह बनकर माहौल पर बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं। हम अपने माहौल में खलल पैदा कर रहे हैं। कुदरत के तवाज़ुन में किसी किस्म का भी खलल जो है वो माहौल पर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज होता है, जो इंसानी ज़िंदगियों को तबाह करता है। आप देखें, आप सफ़र के दूर दराज के सफ़र के लिए इर्द गिर्द जाने के लिए आप गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ख़राब गाड़ियों का निकलने वाला धुआं, फिर जब आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो लकड़ी काटते हैं, दरख्त काटते हैं। ठीक है, दरख्तों की कमी की वजह से भी हमारे माहौल में खलल पैदा होता है। फिर और दरख्त हम नहीं उगाते, उसमें सुस्ती कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है माहौल को ख़राब करने की। फिर फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं भी हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं माहौल पर असरअंदाज हो रही हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन 6 अमेजिंग प्लैनेट, जिसकी ट्रांसलेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में की थी, और इस वीडियो लेक्चर में हमने इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इससे नेक्स्ट लेसन्स की ट्रांसलेशन लेसन्स और एक्सरसाइज लेसन्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस इंग्लिश ग्रेड 5 के तमाम लेसन्स का लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है मौजूद है, वहाँ से आप बाकी लेसन्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा उर्दू के भी तमाम लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ग्रेड 5 के। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।